So last method of this chapter for the evaluation of goodwill is capitalization of super profit method. As like in the previous video, we have seen capitalization of profit method, right? So here your super profit is capitalized. And as you know, when profit is capitalized, the formula for that, the profit divided by expected rate of return into 100. So this how your profit is converted into capital, right? So first of all, you have to reach up to the super profit. So first five steps which we have seen in super profit, the same have been copied here, same you have to follow here. See, the first point, first step is capital employed. Total asset minus total liability. Second step, ERR, that is expected rate of return, which is given in the example. Third step, expected profit. And the formula for that, capital employed into ERR upon 100. Fourth, average profit. Here average profit means what? Who will tell me? Weighted average or simple average? Exactly. Either will follow simple average or will follow weighted average, depending upon the profit trend, profit situation you have given, right? And by comparing average profit and expected profit, the difference of average profit and expected profit is your super profit, right? And finally, you can find the goodwill is equal to super profit divided by ERR into 100. So this how your super profit is going to be capitalized, which is the valuation of goodwill. आई होप सबको ये 6 के 6 स्टेप क्लियर होंगे. पहले 5 आपने सुपर प्रॉफिट में लर्न किए ही थे, सिर्फ लास्ट स्टेप यहाँ पे ऐड करना है, बस इतना नया है. ओके, चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सबको लर्न करके स्टेप बोलना है. मैक्सिमम लोगों को आज स्टेप्स बोलना है. स्टार्ट, योर टाइम इज स्टार्ट. Employed, that is total assets minus total liability, then accepted rate of return, then expected profit, that is capital employed into ERR, then average profit, that can be simple average or weighted average. After that, super profit, that is average profit minus accepted profit. At last, goodwill, that is super profit upon ERR into 100. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलो और किसी को बोलना है? Illustration number 8. Determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method. सिर्फ super profit method नहीं है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये ध्यान में रखना. जनरली ये क्वेश्चन में यही होता है कि 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा, सिर्फ सुपर प्रॉफिट देखा, पूरा सम गिन के आए, बाहर निकले, पता चला वो तो आगे कैपिटलाइजेशन था. ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्टेप्स चेंज हो जाएंगे. So you have given capital employed, directly it is given, no need to calculate. ERR is given 12% and last 5 years profit is given, right? 12-13 का 2 lakh, 13-14 270, 14-15 2,40,000, 15-60 250 and 16-70 230. बोलो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में कौन सी फॉर्मूला आएगी? Simple average. सिंपल, वेरी गुड बेटा. प्रॉफिट पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज. तो इंक्रीज डिक्रीज वाला पैटर्न है. सो यू हैव टू फॉलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. चलो सम देख लेते हैं पूरा. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन 7,80,000, ERR 12%, 780 का 12%, सीधा यहीं पे मिल जाएगा 93,600, which is your
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट दिया है, सिंपल से करना है तो सभी का टोटल, सो विल हैव टोटल प्रॉफिट 11,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने हैं 5 ईयर। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,90,000 डिवाइड बाय 5, 2,38,000, and the difference of this two, 2,38,000 less 93,600 is your super profit, which is 1,44,400, right? And now we'll capitalize this super profit. So goodwill is equal to super profit upon ERR into 100, ठीक है। So 1,44,400 डिवाइड बाय, अगर कैलकुलेटर है तो सीधा आपको 12% पे क्लिक करना है, ठीक है। So your answer is 12,03,333.33, राउंड ऑफ कर सकते हो, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 का एक स्पेशल फीचर मैं बताऊं तो ये नोट कर लेना बेटा कि पूरे ये चैप्टर में अगर सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 9 करोगे तो चलेगा, क्योंकि देख लो नीचे, फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। 6 मेथड का पूरा समय, यानी सभी मेथड को ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिया है, इतना याद रखो। तो जब आप रिवाइज करने बैठते हो, एग्जाम्पल नंबर 9 कर लो, ऑलमोस्ट सभी मेथड, सभी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ओके। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटी दिया है, इससे हमको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देन ERR इज गिवन 10% एंड लास्ट 5 years प्रॉफिट इज गिवन 90,000, 110, 120, 130, 140। बोलो कौन सा मेथड वेटेड आएगा। बट फिर से एक चीज में बेटा फोकस करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने पहले भी बताया था, अगर बेटा भले ही यहाँ पे क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि वेटेड ही आएगा, ठीक है, बट स्टिल आपको क्वेश्चन पूछा है कि भाई कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, तो जो बोला है वही करना है। मैंने ये चीज कब बताई थी, जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या फॉलो करेंगे, वेटेड। बट क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि इससे फाइंड करो, उससे फाइंड करेंगे, राइट। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर रखना है, ओके। अब क्या क्या फाइंड करना है देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years एवरेज प्रॉफिट। पता चला, तो पहला हमको कैसे फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ, यानी ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है, एवरेज प्रॉफिट। पता चला, तो दूसरी भी कौन सी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट वाली ही मेथड है। थर्ड देखो, ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो किससे होगा ये सम, वेटेड एवरेज से होगा। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बट बेसिस कौन सा बोला है, देखो सुपर प्रॉफिट में वेटेड एवरेज, यानी जब हम एवरेज प्रॉफिट वाले स्टेप पे आएंगे तो कौन सा फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज। कुछ नहीं बोला होता तो भी कौन सा फॉलो करते हैं, वेटेड एवरेज। बट मान लो ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता कि एवरेज बेसिस या फिर सिंपल एवरेज बेसिस, तो फिर वो फॉलो करते हैं। आई होप ये सब जो डाउट, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, यानी जो कल देखा था वो कैपिटलाइजेशन, और सिक्स्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो आज पढ़ा है, ठीक है। चलो पूरे क्वेश्चन में पहले कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। बोलो बेटा, है किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया 6 क्वेश्चन में से, तो पूछ सकते हो मुझे, एल्स विल मूव फर्दर। नो क्वेश्चन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
सर वो फर्स्ट वाले में इक्वल टू 5 ईयर, तो 5 ईयर परचेज ईयर है। हाँ अभी दिया है, देखो सॉल्यूशन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, देख लो। इक्वल टू 5 ईयर यानी सिर्फ 5 ईयर का ही एवरेज निकालना है बस। और इक्वल टू 5 ईयर यानी हुआ क्या, जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है वो नहीं है। पता चला? अब वापिस से वो वर्ड बेटा मैं बोल रहा हूं, समझ लो। गुडविल इक्वल टू 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पता चला वर्ड? जो मेरा कर्सर है वो देखो बेटा, फिर से मैं वो वर्ड बोल रहा हूं, गुडविल इक्वल्स टू 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं है। क्लियर है मनोहर? डाउट है इसमें? यस पक्का? यस यस सर। थोड़ा थोड़ा डाउट है, 1%? नो नो सर। ओके ओके फाइन, चल। पहला जो मेथड है उससे सॉल्व करते हैं एज पर लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सो 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है आपको, उसका टोटल करेंगे। टोटल प्रॉफिट 5,90,000 डिवाइड बाय 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट मिला 1,18,000। और वापिस से क्वेश्चन में दिखा दूं आपको, पहला क्वेश्चन, गुडविल, फिर से वही वर्ड मैं बोल रहा हूं, गुडविल इक्वल टू, पता चला, 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो वही किया है, गुडविल इक्वल टू ये एवरेज प्रॉफिट यानी 5 ईयर का ही है, 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट विच इज 1,18,000। आई होप the first question is clear. Okay, second question, goodwill equals to, देखो बोला ये 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट बेटा किया ही था, तो वापस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनटू क्या कर देना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 1,18,000 इंटू 3, योर गुडविल इज वैल्यूड 3,54,000। चलो सेकंड क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। नो? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो तो पहले ईयर लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, विच इज गिवन, राइट, बट वेट इज नॉट गिवन। तो 5 साल है, 5 साल का वेट 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली हम डाल देंगे, तो टोटल वेट मिल गया 15। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट आपको दिया है, वेटेड प्रॉफिट यानी आपको पता ही है क्या, वेट इंटू प्रॉफिट। तो 90,000 इंटू 1 90,000, 110 इंटू 2 220, 120 इंटू 3 3,60,000, 130 इंटू 4 5,20,000, 140 into 5 7 lakh, right? So your total weighted profit is 18,90,000. So weighted average profit हमारा step number 1, total weighted profit upon total weight 18,90,000 divided by 15. So weighted average profit is equal to 1,26,000, right? Number of year of purchase is given, which is 2. So goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase, 1,26,000 into 2. So the value of goodwill is 2,52,000. ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो। मेथड 3 में, क्वेश्चन 3 में, नो? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट है 10 लाख माइनस टोटल लायबिलिटी 2 लाख, सो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 8 लाख रुपीज। आप इस तरीके से इसको, ये सम को प्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं ड्रॉ करके लिखोगे तो भी चलेगा, बट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेकेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10% गिवन, सो इससे हमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सीधा यहां से भी आप ढूंढ सकते हो, 8 लाख का 10% विच इज 80,000 इज योर expected profit. This is what you are expecting. Average profit using weighted average बोला है, तो बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है,
तो यहाँ पे सीधा वही रेफरेंस से अमाउंट दे दिया है। देखो थर्ड मैथ क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,26,000, गुडविल की अमाउंट नहीं लेनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, विच इज 1,26,000। तो सीधा वही लिख दिया 1,26,000। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट यानी 1,26,000 minus 80,000. So the difference is 46,000, which is our super profit. Okay. Number of year of purchase है 4, तो into कर दो 4. So goodwill is equal to super profit 46,000 into number of year of purchase 4. So the value of goodwill is 1,84,000. Okay. Clear है? इसमें कोई doubt है? You can ask me. Else we'll move further. नो, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करेंगे, बट एक चीज, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कौन सा प्रॉफिट हम यहाँ पे ले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक नहीं बोला है। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन रीड करूं, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में रीड करूं, एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, बस। तो यहाँ पे तो हमने बेटा दोनों चीज फाइंड की। क्या फाइंड किया? सिंपल एवरेज भी फाइंड किया है, वेटेड भी फाइंड किया है, बट मैंने बोला है कि जब कौन सा बेसिस है वो नहीं बताया तो ऑब्वियसली पैटर्न देखो, पैटर्न देख के क्या आएगा आंसर, कौन सी मेथड यूज करेंगे? वेटेड बेटा, क्लियर है? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो सब ये सब में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, तो वेटेड हम फॉलो करेंगे। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ERR 10% है, एवरेज प्रॉफिट सीधा वेटेड वाला हम बेसिस लेंगे 1,26,000, कैपिटलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज कैसे करेंगे? जो वेटेड प्रॉफिट है 1,26,000 डिवाइड बाई ERR इंटू 100, तो हो गया 12,60,000। दो कैपिटल मिल गई, एक तो कैपिटलाइज प्रॉफिट 12,60,000, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। ये दोनों का डिफरेंस हमारा गुडविल, 1260 माइनस 8 लाख, so 4,60,000 is the value of goodwill. Is it clear? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? You can ask me. No, आगे बढ़ते हैं। And the last question, super profit capitalization method. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स पहले फॉलो करेंगे, लास्ट में उसको कैपिटलाइज कर देंगे, इतना याद रखो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख माइनस 2, 8 लाख, ERR 10%, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 80,000। एवरेज प्रॉफिट हमको पता ही है, वेटेड वाला लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो, विच इज 1,26,000। एंड द डिफरेंस ऑफ दिस 126 एंड 80, ये डिफरेंस ही हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट, विच इज 46,000। ठीक है, अब ये 46,000 को कर दो कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइज कैसे करेंगे? डिवाइड में ERR आएगा, इतना याद रखो। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 46,000 डिवाइड बाई ERR इंटू 100, सो आंसर इज 4,60,000। ओके, क्लियर है कि कोई डाउट है? पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो बेटा feel free in asking the question.